Acha, so in this video we're gonna be making a DHCP pool from scratch this time क्योंकि पिछली दफ़ा I was just showing how to do the code thingy जो code लिखना था खाली वो वाला था ना, तो this time I'm gonna do it from scratch stage 1 से ताकि there isn't any confusion. तो उसके लिए द थिंग इज़ जो DHCP pools होते हैं ना, वी कन्फिगर इट इनसाइड द राउटर. सारा काम ही वो राउटर का होता है ना. एंड लेट्स से यू हैव 2 नेटवर्क्स, ठीक है, क्योंकि इन द प्रोजेक्ट यू कैन हैव मल्टीपल नेटवर्क्स एनीवे. Project के if you look at it from the project's point of view, let's say this is like the electronics lab. I'm just gonna do 2 labs for now, and this is the computing lab, ठीक है. And let's just attach 2 PCs, ठीक है, 1 2 actually 3 just to make sure it's a bit easier. इसको copy किया, Ctrl V, 3 PCs इस lab में भी, ठीक है. just connect everything up, और after that I'm gonna show you how to configure a DHCP pool for both of these labs, and I'm gonna explain a bunch more things के इसको ना आप VLANs में भी कर सकते हो. the process is pretty similar, just a few things are different, लेकिन the DHCP part is entirely identical. So even if you're doing this on VLANs, it should not be a problem. The only thing that would be different would be the default router IP. इसमें हम प्रॉपर गेटवेज देते हैं. इन दैट यूर गोना हैव टू गिव द, उसमें भी गेटवेज देते हैं, इसमें बस इंटरफेसेस आर डिफरेंट. एनीवेज अभी हमने कोई IP एड्रेसेस नहीं देने बिकॉज वी आर गोना डू दैट यूजिंग DHCP पूल्स. तो वी आर जस्ट गोना गो डायरेक्टली टू द राउटर. और हाँ, सबसे पहले लेट मी जस्ट राइट डाउन कि कौन सा नेटवर्क क्या होगा ना. सो fill color, select fill color, let's make it blue, or this is gonna be one network. Select fill color, this is gonna, let's make it pink, and this is gonna be the second network, ठीक है. तो अब this network, it's gonna be 192.168.2.0, ठीक है. And this is 2.0, and this is going to be 192.168.1.0. this is going to be different in your case जो आपने IP एड्रेस देने चाहिए. this is just an example. तो आपका let's say कि इस नेटवर्क में ये IPs होंगी, इस ब्लू वाली IPs का ये नेटवर्क है, and for the pink area this is the network which we're going to be allocating IP addresses from. तो first of all just go over here, and इसके लिए you need to first give the gateways ना, कि आपने सबसे पहली चीज़ जो हमने साइन करनी है वो गेटवेज होते हैं. तो let's just see कि इसमें कौन सा है. it's on FA00. I'll just show you how to do it from the command line first, ठीक है. enable config t int FA0/0, और इसके बाद you just write IP add 192.168.1.1, which is going to be the gateway. 1.1 is going to be the gateway for this network, ठीक है. you just write the gateway here, और इसके बाद उसका gateway का subnet mask 255.255.255.0, enter, and after that you write no shut to turn it on, ठीक है. that's it. तो इसका एक ये हो गया. and for the second I'm just gonna go and give it from shortcut method 1.0 पे ना. you can do the same thing on the command line if you want to practice, लेकिन this is just a bit quicker, तो I prefer this. लेकिन you should know how to do it from the command line in case सर पूछ लें, you know. अच्छा, 2.1 enter, subnet mask आ गया, turn it on, or now we can just go right into like making the DHCP pools now. First of all you need to go into configuration mode, enable और config t when yes, ठीक है, ये वाला mode config mode, ठीक है. and सबसे पहले you write IP DHCP pool and you write the name. तो पहला pool मेरा electronics lab का ना, electronics lab, ठीक है. the thing is कि ये नाम ज़रा देख के रखना, because if you have to edit it in the future you're gonna be using these names जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हो. तो
This is important. Make sure it's something you can remember. Make sure it's something that's easier to write. तो ठीक है, आफ्टर दैट यू गिव द नेटवर्क है ना, इस आईपी ना इस पूल में कौन सा नेटवर्क यूज़ हो रहा है ना, तो इन आवर केस इट्स 192.168.1.0 सबनेट मास्क 255.255.0, ठीक है. You give the network, you give it subnet mask, ठीक है. उसके बाद you need to tell the router कि यार ये नेटवर्क लोकेटेड किधर है ना. एंड हाउ वुड यू डू दैट? हमने अभी क्या किया, गेटवेज दिए ना. वी नो के जो ये नेटवर्क है ना उसका गेटवे 192.168.1.1 है ना. तो वी जस्ट नीड टू टेल द राउटर कि जिस भी इंटरफेस पे 192.168.1.1 वाला गेटवे है ना, दैट्स वेयर यू गोना हैव टू अप्लाई दिस DHCP पूल ना. तो उसके लिए यू जस्ट राइट डिफ़ॉल्ट राउटर 192.168.1.1 which is basically your gateway, ठीक है. This is how the router is gonna know कि कौन सा switch है and कौन से switch पे कौन सा DHCP pool अप्लाई करना है, ठीक है. इसके बाद there is an extra command which is gonna come in handy later, DNS server, ठीक है. and make sure कि you have a DNS server. I'll just quickly explain it क्योंकि just having a server is better, ठीक है. फर्स्ट करो ये आपका सर्वर है ना, ठीक है. एंड यू हैव अटैच्ड इट टू सम स्विच, ठीक है. कोई भी स्विच हो, ठीक है. इन समवेयर इन द नेटवर्क आपने इसको लगाया हुआ, ठीक है. नॉट नेसेसरीली अ लैब. लेट मी जस्ट सेपरेट इट फ्रॉम द लैब क्योंकि प्रोजेक्ट में भी ये लैब में नहीं लगा हुआ, ठीक है. जस्ट समवेयर एल्स, ठीक है. तो यू अटैच इट टू द नेटवर्क, ठीक है, थ्रू अ स्विच. दिस इज़ लाइक रियली इम्पॉर्टेंट, जिसमें मेरा काफ़ी टाइम लगा था. Why is this not connecting? इसको डिलीट करो. Grab another switch. मैंने गलत स्विच उठा लिया होगा. अच्छा, you attach it and just like this. Serial क्या हुआ इसको? Is it on a serial port? हाँ ठीक है. Why is it red? इसे red नहीं होना चाहिए. Let me just see. I don't know why this is red. Fast Ethernet 0 पे है. ठीक है, ठीक है. Anyways, अच्छा, let's just say you have a server attached like this. आपके प्रोजेक्ट में भी इस तरह होंगे ना. तो the server is gonna have an IP, ठीक है. एंड वो इसी इसमें सर्वर को भी IP एड्रेस इसी तरह देते हैं ना. let's just say 192.168.3.2, ठीक है. you give it the gateway as well 3.1, ठीक है. तो this is the IP address, right? तो you need to put this in the server. आपका एक DNS सर्वर होना चाहिए, ठीक है. एंड ये आप पहले से प्रिपेयर करो. वॉच द वीडियो on the DNS server before you do the whole DHCP pool thing क्योंकि वो पहले आता है, ठीक है. paste it here, ठीक है. exit, ठीक है. and अब इसको पता है कि कौन से DHCP pool पे क्या क्या देना है ना. now let's just do it for the second lab which is computing lab, ठीक है. उसका सेम चीज़ है, IP DHCP pool computing lab network 192.168.2.0.255.255.255.0. इसके बाद it's just gonna be default router and it's gonna be 192.168.1.2.1 the gateway. इसके बाद DNS server and the IP address of the server you're gonna set up. exit. आपका दूसरा भी pool ख़त्म हो गया, ठीक है. this is the most important thing. आपने DHCP pools बना दिया, it's not over yet. you need to exclude certain addresses जो आपने रिजर्व किए हुए ना. अब इन नेटवर्क्स में से the only address that we have reserved is the gateway. दो जो सबसे पहले वाले एड्रेसेस थे ना, क्योंकि it's gonna be an issue क्योंकि DHCP pool को अभी नहीं पता कि हमने गेटवेज कहीं साइन किए हुए ना. तो it's gonna
द गेटवेज आर गोना बी पार्ट ऑफ दैट पूल। और अगर गेटवे एक पीसी को मिल गया ना तो मसला ये होगा कि इस पीसी के पास भी सेम एड्रेस होगा और गेटवे के पास भी सेम एड्रेस होगा, तो डुप्लीकेशन हो जाएगी एंड दैट्स गोना कॉज प्रॉब्लम्स ना। तो यू नीड टू एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड सम एड्रेसेस ना। तो आई थिंक इसका ये था IP/DHCP I don't know, पूल excluded addresses थे, excluded addresses address and 192.168.1.1 yep, IP/DHCP excluded address 192.168.2.1। ठीक है, अब हमने I forgot the dash, अच्छा स्पेस नहीं आती इसके बीच में, there's a dash, ठीक है, there's a hyphen। तो you do this, आपके दोनों एड्रेसेस एक्सक्लूड हो गए। नाउ इट शुड बी सेटअप, ठीक है। लेट मी जस्ट सी के यू इफ़ यू वांट टू चेक जस्ट डू शो रन, इट्स गोना शो यू द रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। यू कैन सी के वी हैव IP एड्रेसेस एक्सक्लूडेड, उनमें से दोनों गेटवेज आ रहे हैं, ठीक है, द फर्स्ट गेटवे एंड द सेकंड गेटवे। और इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, ठीक है, नेटवर्क आ रहा है, मास्क आ रहा है, डिफ़ॉल्ट राउटर आ रहा है, DNS सर्वर आ रहा है, नेटवर्क आ रहा है, मास्क आ रहा है, डिफ़ॉल्ट इस तरह, ठीक है। अभी भी आपके कंप्यूटर्स पे दिस इज़ वन फाइनल स्टेप विच यू नीड टू डू। कॉन्फ़िग पे जाके इसीलिए स्टैटिक और DHCP, ठीक है, यू नीड टू स्विच इट टू DHCP एंड दिस इज़ गोना रिक्वेस्ट एन एड्रेस एंड नाउ यू कैन सी के यहाँ पे आपका गेटवे भी आ गया, सर्वर भी आ गया, ठीक है। फिर गो टू फास्ट Ethernet 0, यू कैन सी कि इसका IP एड्रेस भी आ गया विच इज़ 192.168.2, क्योंकि इट गिव्स इट इन ऑर्डर ना। अब मैं इस पे जाके करूँ, यू कैन ऑल्सो डू दिस फ्रॉम डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िग, यहाँ पे भी स्टैटिक आ रही है, जस्ट स्विच इट टू DHCP ना। तो इसी रिक्वेस्टिंग IP एड्रेसेस, और पिछला 2 था द नेक्स्ट अवेलेबल एड्रेस इज़ 3। अगर हम 1.1 को एक्सक्लूड ना करते, इट वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम 1 ना, सबसे पहले DHCP 1 होता, इट वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम, क्लैश आ जाता। इन दिस केस इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2 क्योंकि हमने 1 को एक्सक्लूड कर दिया ना। तो anyways this का 3 है, the next one is gonna be 4, just go over here, desktop IP config DHCP requesting a new IP address, this is 4, ठीक है। तो over here desktop IP config DHCP, this is gonna be from the second network, देखो 2.2, इसका default gateway 2.1 and the DNS server is the same thing, ठीक है। तो DNS server की जो वीडियो है, if you watch it you will know कि why DNS servers are important, तो उसको देख लो। लेकिन I highly recommend के ना don't leave the DNS server step for later, it's gonna cause you problems, क्योंकि DNS server से आपकी वेबसाइट लिंक होती है and because your website is linked to the DNS server, आपने अगर IP कॉन्फ़िगरेशन करी है DHCP, आपको वापस आके ना दोबारा से सारे सर्वर्स को सारे IP पूल्स को DHCP पूल्स के अंदर एक ना DNS सर्वर डालना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ यू डोंट ऐड अ DNS सर्वर इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आपका DHCP पूल चलेगा। लेकिन क्योंकि हमने इसके साथ एक वेबसाइट भी लगानी है ना, तो उस टाइम पे इट्स गोना बी अ प्रॉब्लम इफ़ यू प्लान टू यूज़ अ DNS सर्वर। आप DNS सर्वर के बगैर भी वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन लाइक आई सेड व्हेन यू डू दैट इट्स गोना बी समथिंग एल्स। आप सर्विसेज पे जाते हो, HTTP पे जाते हो, दिस इज़ वेयर यू मेक अ वेबसाइट, राइट। तो इट्स ऑलरेडी ऑन आपका। आप ब्राउज़र पे जाते हो ना, डेस्कटॉप पे यू गो टू द वेब ब्राउज़र एंड यहाँ पे ना दिस इज़ हाउ यू एक्सेस द वेबसाइट। तो गिव इट अ सेकंड, यहाँ पे ना URL पे ना यू पेस्ट, अभी क्योंकि मैंने DNS सर्वर सेटअप नहीं किया ना, आई हैव टू पेस्ट दिस विच इज़ द इट्स नॉट गोना वर्क राइट नाउ, मैंने इसके बीच में राउटिंग नहीं सेटअप किया। एनीवेज यू नीड टू पेस्ट द जिस सर्वर पे आपने वेबसाइट होस्ट की हुई ना, सर्वर की ना आपने IP एड्रेस पेस्ट करनी होती है ना। लेकिन इफ़ यू यूज़ DNS सर्वर्स you'll have the option to give the website a name, which is way better than a website not having a name. So just watch that video, उससे समझ आ जाएगी। If you plan on going that route, अगर नहीं जाना it's still possible, it's just not, it doesn't look good, it doesn't look as good, चल जाएगा, you'll get marks। तो that's about it, that's how you set up DHCP pools। और इसके बाद if you want a new, if you want to add another lab, you just attach another switch, उसके साथ PCs होंगे and it's the same procedure, it's just exactly same, repetitive होता है। You just need to make sure कि you exclude the addresses and you give it a name you can remember। वैसे भी इतना मसला नहीं होता है। show run पे it's right over here, यहाँ से भी आप देख सकते हो कि आपने क्या नाम दिया था।
दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।